وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قابل احترام سامعین، میں نے قرآن عزیز سے مختلف مقامات کی کئی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ آج کے اس درس کے لیے جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے گزارش کی گئی ہے وہ ہے منہج سلف ہی کیوں، یعنی منہج سلف کیوں ضروری ہے۔ آج اس کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے، تھوڑا اگر غور سے سنیں گے تو بات جو ہے واضح ہو جائے گی کہ آج کا جو موضوع ہے خاص طور سے کہ منہج سلف کیوں ضروری ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی بات، ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ دین کون سا ہے؟ اسلام ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور کو بطور دین کے اختیار کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ فرماتے ہیں اس سے وہ عمل اس کا قبول نہیں کیا جائے گا، اور وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ دین شروع ہوا اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کو اللہ نے مکمل کیا۔ جتنے بھی انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے، سارے کے سارے انبیاء ایک خاص زمانے کے لیے آئے، ایک خاص شریعتیں لے کر کے آئے۔ وہ زمانہ ان کے ساتھ خاص تھا، وہ شریعتیں ان کے ساتھ خاص تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے بھیجا تو کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ یعنی قیامت تک اگر اب کوئی دین اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ ہے وہ تو دین اسلام ہے، نہ تو کوئی نیا دین آنے والا ہے اور نہ ہی کوئی نئی کتاب آنے والی ہے اور نہ ہی کوئی نیا نبی آنے والا ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں گے بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، آپ کے شریعت ہی کے اوپر وہ عمل کریں گے۔ تو اب جو ہے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دوسرا دین نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام جو ہے جس کے ہم پابند ہیں، جس کے ہم ماننے والے ہیں، جس کے ہم دعوے دار ہیں، یہ اسلام ہم کو کہاں ملے گا؟ آج ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے مسلمان الگ الگ ہیں، جدا جدا ہیں۔ یعنی ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور وہ اللہ کی کتاب کو مانتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مانتا ہے، لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عقائد کے اعتبار سے وہ الگ ہے، عبادات کے اعتبار سے الگ ہے۔ ایسا کیوں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دین دیا تھا، دین اسلام؟ تو واقعی اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ صحیح اسلام کیا ہے، صحیح دین کیا ہے، ایک انسان اگر اس کو اسلام کو سمجھنا ہے، اسلام کو جاننا ہے کہ صحیح اسلام اور صحیح دین کیا ہے، کسی نے کوئی آپ سے پوچھے کہ ہم کو اسلام کو جاننا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ یہ کہیں اس سے کہ آپ مجھے دیکھ لو، جیسا میں ہوں ویسے ہی مسلمان ہوتا ہے، تو غلط ہے۔
या आप ये कहें कि सारे मुसलमानों को देख लो, ये सारे के सारे जो अकीदा रखते हैं, जो अमल करते हैं, उनके जो आदात व अतवार हैं, यही इस्लाम है और ऐसे ही मुसलमान होते हैं, ये भी बात दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि इस्लाम अगर हमको मिल सकता है तो कहाँ से मिल सकता है? अब कोई कहे कि हम इस्लाम को जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो अगर वो इंटरनेट, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे, सर्च करे कि यहाँ से हमको इस्लाम मिल जाएगा, तो आज सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर भी इस्लाम आपको सही नहीं मिल सकता है। सही इस्लाम और इस्लाम का मस्दर, इस्लाम का माखज अगर कोई है तो क्या है? अल्लाह की किताब और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन। अल्लाह की किताब कुरान अजीज, पूरा कुरान क्या है? इस्लाम है। और इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल, या आपके सामने किसी ने कोई बात कही, किसी ने कोई काम किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बाकी रखा, मना नहीं किया, आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया उसके ऊपर, वो भी हदीस है। तो सही इस्लाम अगर हमको जानना है तो सही इस्लाम कुरान में है और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में है। उसके अलावा कोई तीसरी चीज है? कोई तीसरी चीज नहीं है। अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या चीज उतारी है? कुरान उतारा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कुरान सहाबा को सुनाते थे। और अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत भी बयान फरमाई, यतलू अलैहिम आयाती, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के ऊपर क्या पढ़ते थे? कुरान ही को पढ़ करके सुनाते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुरान में फरमाया, वनज़्ज़लना अलैका दिक्रा लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम वअंज़लना इलैका दिक्रा लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम। ऐ नबी, हमने आपके ऊपर जिक्र नाजिल किया है। जिक्र से मुराद क्या है? कुरान, अल्लाह की किताब। अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतारा। कुरान उतारने का मकसद क्या है? लितुबय्यिना लिन्नास, ताकि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुरान की तफसीर, कुरान की तशरीह, उसके मानी आप लोगों के लिए बयान करें। इसलिए कि कुरान में आप पढ़ेंगे, लिखा है अक़ीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो, हज करो। लेकिन नमाज कैसे पढ़ेंगे? ये तो पूरे कुरान में आप तलाश करेंगे, नहीं मिलेगा। ज़कात कैसे दें? ज़कात देने का हुक्म कुरान के अंदर है, लेकिन ज़कात कितने माल पे है, किसके ऊपर वाजिब है, फिर ज़कात लेके किसको किसको देना है, कितना कितना देना है, ये भी कुरान में आपको नहीं मिलेगा। इसकी पूरी तफसील किसने बयान की है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस है, आपके जो फरामीन हैं, वो क्या है? कुरान की तफसीर है, कुरान की तफसीर है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया तुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ऐ नबी, हमने जो कुरान आपके ऊपर नाजिल किया है, इसकी तशरीह और इसकी वदाहत, इसकी तफसीर आप लोगों के ऊपर बयान करें। यही तरीका था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि कुरान को पढ़ते थे और अहादीस के जरिए से, अपने बयान के जरिए से सहाबा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाते थे। ठीक है। अब मसला यह है कि कोई शख्स आज के जमाने में ये कहे कि ठीक है, आपने बता दिया कि हमको इस्लाम कहां से मिलेगा? कुरान से मिलेगा। और कहां से मिलेगा? हदीस से मिलेगा। अब कुरान कौन सी जबान में है? अरबी जबान में है। हदीस कौन सी जबान में है? अरबी जबान में है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरान जब अरबी में है, हदीस भी अरबी में है, तो अब कुरान को जब तक समझेंगे नहीं तब तक तो अमल कैसे करेंगे? अमल कैसे करेंगे? इसलिए कोई ये सोचे कि चलो ठीक है, हम अरबी सीख लेते हैं। जैसे हमने इंग्लिश सीखा और दूसरी जबानें सीखी, हम क्या कर लेते हैं? इंग्लिश सीख लेते हैं। और फिर इंग्लिश सीख करके, अरबी सीख करके, फिर हम क्या करेंगे? कुरान पढ़ेंगे और कुरान पढ़ करके जो हमको समझ में आएगा उसके एतबार से हम अमल करेंगे। ठीक है। फिर अरबी हमने सीख लिया है, अब हदीस हम पढ़ेंगे और उसके बाद अपने एतबार से हमको जो समझ में आएगा अमल करेंगे। ठीक है। तो क्या ये तरीका दुरुस्त है कि एक इंसान अरबी जबान सीख ले और उसके बाद अपने एतबार से कुरान को पढ़ना शुरू करे और इसी तरह से हदीस को पढ़ना शुरू करे, उसके जो समझ में आए
اور اس کے اوپر وہ عمل کرتا جائے. کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کو نازل کرنے کے بعد ہر انسان کو اس کے سمجھنے کے تئیں آزاد چھوڑا ہے یا کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں؟ ایسی بات ہے. اگر ہر انسان کے اوپر اگر چھوڑ دیا جائے کہ وہ عربی زبان سیکھ کر کے اور اپنے اعتبار سے قرآن کو سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے، کیا سارے انسانوں کا فہم ایک جیسا ہے؟ سمجھ ایک جیسی ہے سارے لوگوں کی؟ بالکل نہیں ہے. ایک بات آپ ایک الگ انداز میں سمجھتے ہیں، دوسرا انسان ایک الگ انداز میں سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی کہیں بھی بات کچھ ایسی کامن باتیں ہوتی ہیں کہ ایک انسان اس کو غصے میں سمجھتا ہے، ایک انسان اس کو خوشی کے کلمات سمجھتا ہے. تو ہر انسان کا فہم الگ الگ ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ کیا قرآن و سنت کے سمجھنے میں اور اس کے اوپر عمل کرنے میں ہر انسان آزاد ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی کے فہم کا محتاج بنایا ہے یا پابند بنایا ہے؟ یہ اصل سوال ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت، ہر امت کو ہم نے کیا دی تھی؟ ایک شریعت دی تھی اور ایک کیا دیا تھا؟ منہاج دیا تھا. شریعت اور ساتھ میں ایک منہاج. منہاج کا معنی ہوتا ہے طریقہ. منہاج کا معنی ہوتا ہے طریقہ. تو اللہ تعالیٰ نے شریعت بھی دی اور کیا دیا ہے ساتھ میں؟ منہاج، طریقہ بھی دیا ہے. شریعت کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے یہ بھی اللہ نے بتایا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کتاب نازل کر دیتا تھا، نبی کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اگر کتاب نازل کیا تو اس کتاب کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے یہ کون بتائے گا؟ یہی بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے تھے. ٹھیک ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں منہج، اسی کو کہا جاتا ہے منہاج. ٹھیک ہے. اسی کو کہا جاتا ہے مسلک، اسی کو کہا جاتا ہے جو ہے مذہب، اسی چیز کو کہا جاتا ہے. یعنی شریعت پر چلنے کا طریقہ، شریعت پر چلنے کا طریقہ. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت دے دی، دین اسلام، اس پر چلنے کا طریقہ بتا دیا. اب سوال یہ ہے کہ طریقہ کس کا لیا جائے؟ طریقہ کس کا ہونا؟ ٹھیک ہے نا. کس کا طریقہ؟ ایک تو یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اعتبار سے آزاد ہے، اس کو جیسا سمجھ میں آئے ویسا کرے. جس کو یعنی قرآن نے کہہ دیا نماز پڑھو، ٹھیک ہے. نماز پڑھنے کا اس نے دیکھ لیا طریقہ اپنے حساب سے، اس کو جو سمجھ میں آیا ویسا پڑھ رہا ہے، کیونکہ بھائی ہم نے قرآن ایسے سمجھا ہے، حدیث ہم نے ایسی سمجھی ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ ہر انسان اپنے اپنے فہم کو لے کر کے آزاد ہے. دوسرا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ایک چیز یہ دیکھیں گے کہ قرآن و سنت تو یہاں سے ہم دین لیں گے، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے آبا و اجداد کیسے نماز پڑھتے تھے، ہمارے باپ دادا کیسے نماز پڑھتے تھے، وہ غلط نہیں ہو سکتے ہیں. تو باپ دادوں جیسے ہم نماز پڑھیں گے، کیونکہ انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول کو دیکھا تھا، سمجھا تھا، تو اس لیے ان کا طریقہ لے لیں گے. ٹھیک ہے. تو ایک تو ہو گیا عقل سے سمجھنا کہ بھائی اگر پہلے کے لوگوں کو اگر دماغ تھا تو ہمارے پاس بھی دماغ ہے. انہوں نے اگر کتاب اللہ سنت رسول کو سمجھ لیا تھا، ہم نے بھی عربی سیکھ لی ہے، ہم بھی اپنے اعتبار سے کتاب اللہ سنت رسول کو کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ ہم سمجھ کے اپنے اعتبار سے عمل کریں گے. تو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ ایک انسان اپنے عقل کو مدار بنا کر کے اور اس کو جیسا سمجھ میں آئے ویسا دین کے اوپر عمل کرے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم غلط ہو سکتے لیکن ہمارے پچھلے لوگ جو ہیں، ہمارے باپ دادا ہیں، وہ غلط نہیں ہو سکتے، تو ہم کیوں نہ ان کے طریقے کو لے کر کے چلیں. ابا جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسے ہم بھی پڑھیں، امی جیسی نماز پڑھتی ہیں ویسے ہم بھی پڑھیں، دادا جیسے پڑھتے تھے ویسے ہم بھی پڑھیں، دادی کو جیسا دیکھتے ہیں ویسے ہم بھی پڑھیں. تو ایک تو کچھ لوگ ایسا دین کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو کچھ ہوتا ہے، کنڈا چل رہا ہے تو چل رہا ہے، فاتحہ ہو رہی ہے تو چل رہا ہے. کیوں؟ ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، اگر صحیح نہ ہوتا تو کیوں کرتے؟ ٹھیک ہے. تو ہم فاتحہ کو دین سمجھ رہے ہیں، کنڈے کو دین سمجھ رہے ہیں، تیجے کو دین سمجھ رہے ہیں، 40ویں کو دین سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، برسی کو دین سمجھ رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے باپ دادا کر رہے تھے اس لیے یہ صحیح ہوگا. ہمارا کیا ہے؟ حسن ظن. حسن ظن، غالب گمان
हमारे बाप दादा करते थे सही होगा। उसके बाद एक तीसरा गिरोह आता है, वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि हम ये देखेंगे कि ज्यादा लोग किस तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठीक है मैं गलत हूं, फला गलत है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है, लेकिन सारे लोग थोड़ी गलत हो सकते। तो बहुत ज्यादा तादाद किसकी है? वो जैसा इस्लाम को फॉलो करते हम वैसा इस्लाम फॉलो करेंगे। ठीक है, मेजॉरिटी किसकी तादाद ज्यादा है? तो बाद लोग तादाद देख करके कि ये लोग ज्यादा हैं तो इनकी बातें सही हो सकती हैं, इनका दीन सही हो सकता है, इनका तरीका सही हो सकता है, इस्लाम का फहम इनका सही हो सकता है, तो कुछ लोग तादाद देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा करेंगे कि किसी एक शख्सियत को हम मुतय्यन कर लेंगे, किसी एक शख्सियत को हम पकड़ लेंगे और उन्होंने जैसा दीन को समझा और जैसा दीन के ऊपर अमल किया वैसा हम दीन के ऊपर अमल करेंगे। तो कितने किस्म के लोग हो गए? 4। एक वो कि वो ये समझता है कि वो सबसे ज्यादा अक्लमंद है, वो किताब और सुन्नत को समझ सकता है, ठीक है, एक ये इंसान हो गया। दूसरा वो जो ये कहता है कि नहीं बाप दादा हमारे दुरुस्त हैं, उनका जो तरीका था वही सही है, उसके ऊपर अमल करेंगे, दूसरे किस्म के लोग हो गए। तीसरे वो हैं जो कहते हैं कि नहीं जो तादाद के एतबार से जो लोग ज्यादा हैं वो सही हो सकते हैं, तो जिनकी तादाद ज्यादा उनके साथ हम जुड़ जाते हैं और उन्हीं के साथ में चलते हैं, उनका जो इस्लाम है, उनका जो तरीका है, उनका जो अकीदा है, उनका जो अमल है उसी के ऊपर अमल करेंगे। 3 हो गए। चौथा वो कहता कि नहीं ये सब सही नहीं है, बल्कि ये देखेंगे किसी एक शख्सियत को हम मुतय्यन करते हैं और उन्होंने जैसा दीन समझा और जैसा अमल किया वैसा हम अमल करने की कोशिश करेंगे। ये हो गए 4 किस्म के लोग। अब सवाल ये है कि सही क्या है? इन चारों में से कौन सही है? क्या दीन को हर इंसान अपने अकल के एतबार से, सही एतबार से क्या समझ सकता है? अगर समझ सकता था तो अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों भेजा? अल्लाह ने सिर्फ किताब दे दिया होता था और कहते थे ये लो, इसको पढ़ो और समझो और उसके ऊपर अमल करो। तो अल्लाह ने क्या किया? नबी भेज दिया और फिर उस नबी के बारे में क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह की मानो और रसूल की मानो। ठीक है, फिर कह दिया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगों तुम्हारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी क्या है? नमूना है, आइडियल है। आप जैसा अमल करें वैसा ही करो, आपकी इबादत जैसी हो वैसी होना। ठीक है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक मॉडल, एक नमूने के तौर पर भेज दिया। ठीक है, तो लिहाजा अपने दिमाग से अगर कोई दीन को समझेगा या समझने की कोशिश करेगा तो गलती पर रहेगा। दूसरे, बाप दादा हमारे सही हैं, इसकी दलील, ये दलील भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलूना शयअन वला यहतदून। ऐसा भी हो सकता कि बाप दादा ही को दीन समझ में ना आया हो, वो जो कुछ कर रहे हो वाकई दीन का हिस्सा ना हो, गलती पर हो जाएगा फिर इंसान। दूसरे ये है कि तादाद जिसकी ज्यादा हो वही सही है, ये भी दुरुस्त नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला ने साफ तौर से कहा अनिहकुम बिमा अंज़लल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने जो शरीयत नाजिल की है उसी शरीयत के मुताबिक आप लोगों के दरमियान फैसला कीजिए। वला तत्तबि अहवाअहुम, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के ख्वाहिशात, उनके मर्जी के मुताबिक आप जिंदगी मत गुजारिए। तो अक्सरियत को अल्लाह ने हटा दिया। उसके बाद फिर यह रहा किसी एक पार्टिकुलर शख्स, किसी एक शख्स को मुतय्यन कर लिया जाए और वो जैसा अमल करे वैसा अमल करें। सवाल यह है किसको मुतय्यन करें? अल्लाह ताला ने
तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतय्यन किया है, तो क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके किसी और को मुतय्यन अगर हम कर लेंगे कि इनकी जिंदगी को देखेंगे, इनका अकीदा जैसे रहेगा, उनका अमल जैसे रहेगा, उनके अखलाक जैसे रहेंगे, उनका तरीका जैसा रहेगा, उनकी नमाज जैसी रहेगी, उनका रोजा जैसा रहेगा, वैसा अमल करेंगे तो हम कामयाब होंगे? क्या अल्लाह ने कुरान में हदीस में किसी और का नाम लिया है? ठीक है, किसका नाम लिया है? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने जिसका नाम लिया वो आप देखिए, एक तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसमें किसी को शुबा है? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या बना दिया? आइडियल नमूना। हमको जो कुछ करना है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख करके करना है। ठीक है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और किसका अल्लाह ने नाम लिया, ये चीज देखनी है। अब देखिए सूरह बकरा में जो मैंने आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमाते हैं फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ऐ लोगों, अगर तुम वैसा ईमान, अगर ये लोग वैसा ईमान लाएं, फ़इन आमनु, अगर ये लोग वैसा ईमान लाएं जैसा कि तुम ईमान लाए, तुम ईमान लाए। सवाल यह है कि सबसे पहले कुरान के मुखातब कौन थे? कौन थे कुरान के मुखातब? कौन थे? सहाबा थे। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, अल्लाह फरमाते हैं फ़इन आमनु, ये लोग यानी सहाबा के अलावा जो लोग हैं, अल्लाह फरमाते हैं ये लोग अगर वैसा ईमान लाएं जैसा कि तुम ईमान लाए, यानी सहाबा को अल्लाह कह रहा है, हमको तो नहीं। अल्लाह ने कहा, किसको कहा? अल्लाह ताला ने सहाबा को, सहाबा को कहा जैसा सहाबा ईमान लाए। फ़क़द इह्तदौ, तब तुम क्या हो जाएंगे? राह रास्त पर रहेंगे। तो अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को बुनियाद बना दिया। ठीक है, ईमान में, अकीदे में, इबादत में हम किसको देखेंगे? सहाबा को देखेंगे। ठीक है, अल्लाह के रसूल क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने दीन नाजिल किया, वो दीन अल्लाह के नबी वसल्लम ने सबसे पहले किसको बताया? सहाबा को बताया। तो इसीलिए सहाबा को अल्लाह ने मेयार करार दे दिया। और आप देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी की रिवायत, हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन नासी करनी सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है। किसने कहा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है। हर एतबार से सबसे बेहतरीन जमाना अल्लाह के नबी वसल्लम का जमाना। सुम्मल लदीना यलूनहुम, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कौन थे? सहाबा। तो सबसे बेहतरीन लोग हो गए वो। उसके बाद सुम्मल लदीना यलूनहुम, फिर जो है उनका जमाना जो उनके बाद आए, कौन आए? वो ताबईन, जिन्होंने सहाबा को देखा, उनसे इल्म लिया, उनसे दीन सीखा, वो सबसे बेहतरीन जमाना। उसके बाद सुम्मल लदीना यलूनहुम, फिर वो लोग जिन्होंने ताबईन को देखा, ताबईन से दीन सीखा, वो सबसे बेहतरीन लोग। तो दीन में अगर हम किसी को आइडियल बना सकते हैं कि सही दीन हमको जहां से मिल सकता है, वो कौन है? एक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा, फिर उसके बाद ताबईन और उसके बाद तबा ताबईन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दे दी सबसे बेहतरीन लोग, पूरी उम्मत में सबसे बेहतरीन लोग कौन हो सकते हैं? सहाबा, फिर ताबईन, फिर तबा ताबईन। उसके बाद आप खामोश हो गए, उसके बाद आपने किसी का नाम नहीं। ठीक है, तो अगर हम ये सही मानों में दीन सीखना चाहते हैं और दीन समझना चाहते हैं कि दीन इस्लाम क्या है, तो हम अपने बाप दादा को नहीं देख के दीन सीखेंगे। किसी एक पार्टिकुलर शख्सियत को अगर मुतय्यन कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या अल्लाह ताला ने कुरान अजीज के अंदर कहीं भी इमाम शाफई का नाम लिया है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया है,
या इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया है, या इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया है कि इनको आप मुतय्यन कर लो और इन्हों जैसा करें वैसा करो। कहीं ऐसा कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहीं जिक्र किया है? पूरा कुरान आप पढ़ डालो, पूरी हदीस अल्लाह के नबी वसल्लम की पढ़ डालो, कहीं नहीं मिलेगा। तो सबसे बेहतरीन जमाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जमाना कहा, अपना जमाना जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और सहाबा थे। और क्यों ना बेहतरीन हो, क्यों बेहतरीन जमाना ना हो? हम जो है, क्योंकि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों पर सबसे ज्यादा अमल करने के पाबंद थे, उनसे बेहतरीन कोई हो ही नहीं सकता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम लोगों में, जितने भी लोग थे, तमाम लोगों में, तमाम लोगों के दिलों को देखा, तमाम लोगों के दिलों को देखा, तो जो सबसे बेहतरीन दिल होते थे उनको अल्लाह ताला ने अपने नबूवत के लिए चुन लिया। समझ रहे ना? उनको नबूवत के लिए अल्लाह ने चुना। और फिर कहते हैं, फिर अल्लाह ताला ने सारे लोगों के दिलों को देखा, जो सबसे बेहतरीन दिल थे अल्लाह ताला उनको नबियों के सोहबत के लिए चुन लिया। तो सहाबा से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। और नबी खुद तारीफ जिसकी करें हैं कि सबसे बेहतरीन मेरा जमाना, और क्यों बेहतरीन ना हो, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा है, वही को उतरते हुए देखा है, हजरत जिब्रील अमीन को अपनी आंखों से देखा है उन्होंने। हजरत हारिसा बिन नोमान रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा अभी जो है खाने काबा में बाबे जिब्राइल नाम का एक दरवाजा है, जो लोग भी हज को गए हैं, उम्रे को गए हैं, बाबे जिब्राइल वही वो मुकाम है। हारिसा बिन नोमान कहते हैं कि एक दिन मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए जा रहा था। मैंने देखा कि एक शख्स जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के खड़े हुए हैं और बातें कर रहे हैं दोनों। मैं इंतजार करने लगा कि भाई वो जरा अपनी बात मुकम्मल कर लें फिर मैं जाऊंगा। कहते हैं 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, आधा, काफी देर तक। कहते हैं मुझे तरस आने लगा कि आदमी सवाल कर रहा है, पूछ रहा है, बातें हो रही हैं, कम से कम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के बैठ तो जाते थे कहीं हैं? कहते हैं जब वो आदमी चले गया तब मैं जब अल्लाह के नबी वसल्लम के पास गया, मैंने कहा कौन है ये आदमी हैं? कम से कम बैठ जाते थे आप, इतनी देर से आप खड़े हुए हैं, बातें कर रहे हैं। कहा जानते हो कौन है? कहा कौन है? कहा जिब्रील अमीन थे। समझ रहे ना? तो सहाबा सबसे बेहतरीन क्यों नहीं? इसलिए कि उन्होंने हजरत जिब्रील अमीन को अपनी आंखों से देखा है। और जिन लोगों ने सहाबा को देख लिया वो क्या बन गए? ताबईन बन गए। अल्लाह के नबी ने कहा वो सबसे बेहतरीन जमाने के लोग हैं। फिर जिन्होंने ताबईन को देखा वो कौन हो गए? तबा ताबईन हो गए। तो इल्म का जो सिलसिला चला, अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन के जरिए से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म दिया, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दिया, फिर सहाबा ने ताबईन को दिया, फिर ताबईन ने तबा ताबईन को दिया। तो ये जो जमाना है ये सबसे बेहतरीन जमाना है। तो खास तौर से दीन को समझें कैसे? जैसे कि सहाबा ने समझा है, जैसे सहाबा ने समझा है। सहाबा ही को हम कहते हैं सलफ। क्या कहते हैं? सलफ। सहाबा, ताबईन और तबा ताबईन, इन्हीं को कहते हैं सलफ। ठीक है। और कुरान में अल्लाह ताला ने देखिए वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। अल्लाह फरमाते हैं कि एक तो सबसे पहले इस्लाम में सबकत करने वाले लोग कौन हैं? अंसार हैं। और कौन है? मुहाजिरीन हैं। ठीक है। फिर अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, फिर वो लोग हैं जिन्होंने अकीदा, अमल और मनहज में उन्हीं के रास्ते की इत्तिबा की। किसकी? सहाबा की, अंसार और मुहाजिरीन की। फिर अल्लाह ताला ने उनका इनाम बताया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये वो लोग हैं कि जिनसे अल्लाह राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। ठीक है। अब देखिए हम ना तो अंसार हैं ना ही हम मुहाजिरीन हैं। हाँ, एक गिरोह में हम शामिल हो सकते, कौन? वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन के नक्शे कदम पर चल करके हम उनके गिरोह में शामिल हो सकते हैं।
लेकिन कैसे? वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, और क़यामत तक आने वाले लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? उनकी इत्तबा की जाए। किनकी? सहाबा की। सहाबा की इत्तबा की जाए। उनका अकीदा जैसा था, उनका अमल जैसा था, उनका तरीका जैसा था, उनके अखलाकियात जैसे थे, उनके माशियात जैसे थे, उन सारी चीजों में अगर हम उनके तरीके पर चलते हैं तो यही क्या है? इसी को कहा जाता है मनहजे सलफ। यही है मनहजे सलफ और कुछ नहीं। तो सलफ से मुराद हमारे कौन है? वही बेहतरीन 3 दौर के लोग, सहाबा, ताबईन और तबा ताबईन। ठीक है, वैसे सलफ के माने होते हैं गुजरे हुए लोग। लेकिन जब हम कहते हैं सलफ, मनहजे सलफ या सलफ का तरीका, तो क्या है? हमारे सलफ कौन हुए? सहाबा, ताबईन और तबा ताबईन। ठीक है, तो दीन को हमको कहां से समझना है? सहाबा से। सहाबा ने जैसे समझा। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि अल्लाह ने कहा है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द तदौ। और फिर आगे अल्लाह ने क्या फरमाया? वही उसी आयत में अल्लाह फरमाते हैं अअद्दल्लाहु लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत तैयार कर रखी है जिसके नीचे नहरें जारी हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद यह है कि दीन इस्लाम और इस्लाम वही मोतबर है जो सहाबा के वक्त में दीन था। जो दीन सहाबा के दौर में दीन था वही दीन मोतबर है, और जो दीन उनके दौर में नहीं था उसको कोई कितना भी दीन बना करके पेश करे वो दीन नहीं हो सकता है, वो दीन हो ही नहीं सकता है। अच्छा, दूसरी बात, सहाबा ने जितने दीन के ऊपर अमल किया उतने दीन के ऊपर अमल कर लिए तो कामयाब होंगे कि नहीं होंगे? अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। तो भाई अबू बकर ने जितने इस्लाम पर अमल किया, अगर उतने इस्लाम पर अमल कर लें तो हम जन्नती नहीं हो सकते हैं? उमर ने जितने इस्लाम पर अमल किया उतने इस्लाम पर अमल कर लें तो जन्नती नहीं हो सकते। अब सवाल यह है कि क्या उमर के दौर में तीजा था, फातिहा था, बरसी थी, कुंडे थे? नहीं थे। तो जितना था उन्होंने उस पर अमल किया तो जन्नत में गए कि नहीं गए? तो उतने ही दीन के ऊपर हम अमल कर लें तो जन्नत में नहीं जाएंगे। हमारे लिए जरूरी है कि ये सब करें। तो उनके दौर में जो दीन नहीं था, आज के दौर में दीन वो कैसे बन सकता है? अल्लाह फरमाते हैं फलन युक़बल मिन्हु, फलन युक़बल मिन्हु। जो इस्लाम उनके दौर का था वही इस्लाम अगर लाएंगे आप और उसी इस्लाम के ऊपर अमल करेंगे तो अल्लाह कबूल करेगा। अपने एतबार से कोई चीज को इस्लाम समझ करके आप करेंगे तो अल्लाह उसको कबूल नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा की जिंदगी को अगर हम देखते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर से यह बात फरमाई कि ला यातियन्ना अला उम्मती मा अता अला बनी इसराइल हज़मन नाल बिन नाल। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हमारी उम्मत के साथ भी वही कुछ मामला होगा और वही मुसीबतें, वही परेशानियां हमारी उम्मत के साथ भी होंगी जो बनु इसराइल के ऊपर आई हैं, बनु इसराइल के ऊपर आई है। कैसे? हज़मन नाल बिन नाल। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जैसे कि जूते का तस्मा एक दूसरे के बराबर होता है। हमारा जूता है, एक पैर का जो तस्मा होता है उसी के बराबर दूसरे पैर का भी होता है, कि अलग अलग रहता है, छोटा एक बड़ा, ऐसा नहीं रहता ना। हमारे जूते की साइज जो है दोनों की ऐसा नहीं रहता कि एक पैर में 8 नंबर का लग रहा है, दूसरे पैर में 10 नंबर का लग रहा है, ऐसा तो नहीं होता। एक पैर में 8 का लग रहा है तो दूसरे पैर में भी 8 का जूता लगेगा। तो हज़वन नाल बिन नाल अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आगे कि जो है यहूद और नसारा ये 72 फिरकों में बटे और मेरी उम्मत बटेगी कितने फिरकों में? 73 फिरकों में, यानी उनके कंधे पर भी पैर लिख के आगे निकल जाएगी, 73 फिरके में बढ़ जाएगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतुम वाहिदा, सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। अब सहाबा ने पूछ लिया मन हिया या रसूल अल्लाह, आपने कहा 72 जो है जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा, वो कौन होंगे? अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर नाम बता दिया होता तो आज सारे लोग वही नाम नहीं रख लेते थे कि नहीं? है नहीं? अल्लाह के रसूल ने नाम बताया होता अगर है कि ये नाम रहेगा उसका, तो हम भी वही अपना नाम रखते, आप भी वही नाम, सब अपना वही नाम रखते थे।
वही नाम, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम नहीं बताया, आपने नाम नहीं बताया, कोई नाम नहीं रहेगा उसका। आपने क्या बताया? मनहज बताया, तरीका बताया। आपने क्या कहा? आपने कहा मा अना अलैहि व असहाबी, वही गरोह, वही फिरका जन्नत में जाएगा जिस पर मैं हूं, जिस पर मैं हूं, जिस अकीदे, जिस अमल, जिस दीन के ऊपर आज मैं हूं, जितने दीन के ऊपर मैं अमल करता हूं। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला, और इतना काफी था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला और जोड़ा, क्या कहा? वह सहाबी, और मेरे सहाबा आज जिस दीन के ऊपर हैं, ये कहा। तो यही है मनहज सलफ, इसी को मनहज सलफ कहा जाता है कि हम दीन को कैसे समझेंगे, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको समझाया है, जैसे कि सहाबा ने समझाया, वैसा हम अपने एतबार से कुरान और सुन्नत को समझने जाएंगे और गलती करेंगे, गलती करेंगे। सिर्फ अरबी जान लेने से इंसान कुरान और सुन्नत को नहीं समझ सकता है। जैसे कि आप देखिए कुरान में एक आयत है, अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु व हुम मुहतदून। ठीक है, वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान के साथ जुल्म को खल्त मल्त नहीं किया, उलाइका लहुमुल अमनु व हुम मुहतदून, उनके लिए अमन है और उन्हीं के लिए हिदायत है। दो बुराइयां और दो इनाम, या दो काम दो इनाम अल्लाह ने जिक्र किए। नंबर एक ईमान वाले, नंबर दो जिसने अपने ईमान की हिफाजत की। दो शर्त लगाई, एक तो मोमिन और दूसरे अपने ईमान की हिफाजत करता रहे। कैसे? जुल्म से हिफाजत करता रहे। तो उसके लिए दो खुशखबरियां, एक तो अमन की और दूसरे वो हिदायत याफ्ता है, सही रास्ते पर है। ठीक है, अब सहाबा परेशान, सहाबा गए अल्लाह के नबी वसल्लम के पास, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन ऐसा है जिसने अपने आप पर जुल्म नहीं किया, किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया है, तो क्या हमारे लिए अमन नहीं है, हम सही रास्ते पर नहीं है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, जुल्म का जो माना तुम समझ रहे हो अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन यहां अल्लाह ने जिस जुल्म की बात कही है, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिरका लजुल्मुन अजीम, ऐ मेरे बेटे शिरक नहीं करना, क्योंकि शिरक क्या है? सबसे बड़ा जुल्म है। तो यहां जिस जुल्म की बात की जा रही है वो क्या है? शिरक है। एक इंसान जो ईमान वाला है फिर अपने ईमान को शिरक से बचा ले जाए, उसके लिए क्या है? अमन है, और वही क्या है? हिदायत याफ्ता है। तो देखिए वो अरबी जबान जानने वाले थे, लेकिन फिर भी कुरान को समझने के लिए किसके पास गए? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। तो खाली अरबी जान लेने से एक आदमी कुरान को समझ जाएगा और सही समझ जाएगा, इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसलिए मनहज सलफ की जरूरत है, फहमे सलफ की जरूरत है कि हम किताबुल्लाह को कैसे समझेंगे, जैसे कि साहबा ने समझा था, क्योंकि उनका फहम सबसे बेहतरीन फहम है, क्योंकि नबी ने उनकी तारीफ की है। भाई हम अगर किसी की तारीफ करें वो गलत भी हो सकता, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी के बारे में सर्टिफिकेट दे दें कि सबसे बेहतरीन लोग हमारे जमाने के लोग हैं, फिर उसके बाद के फिर आप खामोश बैठ गए, तो उनसे बेहतर दीन को कोई समझने वाला नहीं हो सकता है। और दूसरे अल्लाह ने उनको सर्टिफिकेट दे दी, रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। तो जितना दीन सहाबा की जिंदगी में था उतना दीन अगर हम अपनी जिंदगी में ला लें यकीनन कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अगर उससे ज़ायद लाएंगे तो मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर किसी ने कोई काम किया और उस काम के ऊपर मेरा हुक्म मौजूद नहीं है, वो काम क्या हो जाएगा? मरदूद, वो काबिल कबूल नहीं होगा। अल्लाह फरमाते हैं फलन युक़बला मिन्हु, उससे वो अमल कबूल बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ठीक है, सहाबा के मनहज और उनके तरीक़ेकार को अपनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अमल के एतबार से सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ जाती थी तो वो किसी के भी कौल को नहीं मानते थे। आज एक इल्जाम ये लगाया जाता है कि
ये लोग इमामों को नहीं मानते, हम इमामों को मानते हैं, तमाम इमामों को मानते हैं, उनको भी मानते हैं, उनकी मानते भी हैं, लेकिन हम मानने में ये देखते हैं कि किस इमाम की बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात के मुआफिक है, उसकी बात मानते हैं। जिसकी बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात से नहीं मिलती है, उनकी बात को छोड़ देते हैं, लेकिन उनको बुरा भला भी नहीं बोलते हैं, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात बयान फरमाई है। आपने फरमाया इज़ा हकमल हाकिम, कि जब कोई हाकिम, कोई फैसला करने वाला कोई फैसला दे, ठीक है, और उसको हदीस नहीं मिल रही है, कुरान की कोई आयत नहीं मिल रही, मसला ऐसा है, तो उसमें क्या कर रहा है, उसको जितने कुरान और सुन्नत की बात मालूम है उन पर गौर करते हुए एक फैसला दे देता है, इज्तिहाद करता है, इज्तिहाद करता है। सुम्मा असाबा फलहु अजरान, अगर उसका इज्तिहाद किताब और सुन्नत के मुआफिक है तो अल्लाह उसको 2 अजर दे देता है। जितने भी इमाम हैं, चाहे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हो, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हो, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हो और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह हो, हम ये नहीं कहते कि सारे इमामों को सारी हदीसें मालूम थी। ऐसा है जरूरी कि सारे इमाम तक सारी हदीसें पहुंची हों? बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो जिस इमाम के साथ जितनी हदीस पहुंची थी, उन्होंने जब उनसे किसी ने कोई मसाला पूछा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से, उनके पास जितनी हदीसें पहुंची थी उन्हीं हदीसों को देख करके एक फैसला दे दिया उन्होंने, ठीक है। उनका वो फैसला गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। अगर सही हो गया अल्लाह उनको 2 अजर देगा, वो 2 अजर के मुस्तहिक बन गए, और अगर गलत हो गया अल्लाह के लिए फरमाते हुए इज़ा हकमा फजतहदा सुम्मा अख्ता फलहु अजर, अगर गलत हो गया था उनका फतवा उस जमाने में तो क्या हो गया, उनके लिए 1 अजर फिर भी है, 1 अजर फिर भी है उनके लिए। तो वो गलत कहां हुए, इमाम गलत कहां हुए? तो हमको गलत क्यों बोल सकते हैं? जितने भी इमाम हो गलत कैसे हो सकते हैं? अल्लाह के लिए फरमाते हैं 1 अजर फिर भी उनको मिला, चाहे जाए कि वो फतवा देने में या मसले बयान करने में गलती कर गए, लेकिन उन्होंने कोशिश की ना, कोशिश की। तो जितने भी इमाम हैं सारे के सारे उन्होंने इज्तिहाद किया और उस इज्तिहाद से मसला बयान किया। मसला अगर किताब और सुन्नत के मुआफिक है अल्लाह उनको 2 अजर देगा, और अगर मुआफिक नहीं है तब भी 1 अजर के वो मुस्तहिक हैं। बुरे कैसे हो सकते हैं? ठीक है। और यही मनहज और यही तरीक़ेकार बाइन ही सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन का था। अब देखिए, सारे सहाबा को सारी हदीसें मालूम हो ऐसा जरूरी नहीं है, जैसा मैंने अभी इमामों के ताल्लुक से बात बयान किया। एक वाकया मैं आपके सामने रखता हूं। हजरत सही बुखारी के अंदर हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके पास कुछ लोग आए, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। उनके पास जो है कुछ लोग आए और उन्होंने हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वरासत का एक मसला पूछा। ठीक है, वरासत से एक आदमी मर गया, उसके जायदाद के तकसीम के मुतालिक हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक मसला पूछा गया। उन्होंने कहा कि ए अबू मूसा, एक शख्स मर गया है, उसकी एक बेटी है, एक बहन है और एक पोती है। हम ये जानना चाहते हैं कि मरने वाले का जो जायदाद है वो इस बहन और बेटी और पोती में कैसे तकसीम होगा। यह हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल है। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि लिल बिनती अन्निस्फु, बेटी को आधा दे देंगे, और वलिल उख्ति निस्फु, और बहन को आधा दे देंगे, और पोती को कुछ नहीं देंगे, पोती को कुछ नहीं देंगे। उन्होंने जो भी उन्हें हदीस मालूम थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो कुछ उन्होंने देखा था उसके मुताबिक सोच करके उन्होंने एक मसला बयान कर दिया, लेकिन शक था उनको क्या था? शुबहा था। तो उन्होंने क्या कहा वह अतिबना मसूदिन, कहा ऐसा करो कि जरा जाओ अब्दुल्ला बिन मसूद के पास और ये कन्फर्म करा कि जो मैंने फतवा दिया है या जो मैंने बयान किया सही है कि सही नहीं है। और कहते हैं फसयुताबिउनी, कहते हैं कि मुझे जहां तक यकीन है कि जैसा जो कुछ मैंने मसला बयान किया है, फतवा जो दिया है, अनकरीब वो मेरी मुआफकत करेंगे, यानी वही बात वो भी कहेंगे, लेकिन थोड़ा जा करके थोड़ी तस्दीक हो जाएंगी। बोले ये अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि जाकर के अब्दुल्ला बिन मसूद के पास जाकर के पूछो।
अब गए अब्दुल्ला बिन मसूद के पास, उन्होंने हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बताया कि हम गए थे और उनसे हमने मसला पूछा। उन्होंने कहा कि भाई बहन को आधा मिलेगा और बेटी को आधा मिलेगा, पोतरी को कुछ नहीं मिलेगा। और कहा कि जा करके आप हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के पास जाओ और उनसे कंफर्म करा लो, और मुझे यकीन है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी यही फतवा देंगे। अब सुनिए अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने क्या कहा। उन्होंने कहा लक़द ज़ललतु इदन वमा अना मिनल मुहतदीन। कहा कि अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो फतवा दिया है, अगर वही फतवा मैं तुम्हें दे दूं तो मैं गुमराह हो जाऊंगा। क्या बोले? मैं गुमराह हो जाऊंगा। वमा अना मिनल मुहतदीन, और मैं सही रास्ते पर नहीं बचूंगा। अब यहां दूसरा तरीका क्या हो सकता था? अबू मूसा अशअरी ने ऐसा फतवा देके क्या किया? गुमराही का काम किया। उन्होंने बहुत गलत किया है, उनका फतवा बिल्कुल सही नहीं है, वो गलती पर हैं। ऐसा कुछ कहा अब्दुल्ला बिन मसूद ने? क्यों नहीं कहा? इसलिए कि वो जानते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुज्तहिद जब इज्तिहाद करके कोई फतवा देता है और उस फतवे में गलती कर जाता है तो क्या होता है? वो एक अजर का मुस्तहिक बन जाता है। यही तो इमामों का मसला है। इमामों का मसला जितने भी हैं उनका यही मसला है, वो एक अजर के मुस्तहिक। हम उनको गलत नहीं बोल सकते। गलत किस एतबार से? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं मिली इन्होंने, इसलिए उनका फतवा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के खिलाफ पड़ गया। हमको हदीस मालूम हो गई, हमारी क्या जिम्मेदारी है? इमाम साहब की गलती पर रहें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अपनाएं? क्या करें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अपनाएं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने उनको गुमराह नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि अगर वही फतवा मैं दे दूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? गुमराह हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मालूम है, उनको मालूम नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसा फतवा दे दिया। मुझे मालूम है और मैं सीधे रास्ते पर नहीं बचूंगा अगर मैं वही फतवा दे दूं। और उसके बाद उन्होंने कहा अक़ज़ी फीमा बिमा क़ज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं मैं वो फतवा दूंगा, मैं वो फैसला दूंगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले में फतवा दिया था। मैं वो फतवा दूंगा, मैं अबू मूसा अशअरी वाला फतवा नहीं दूंगा, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला फतवा दूंगा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फतवा दिया? आपने कहा लिल इब्नतिन निस्फु, बेटी को आधा मिलेगा, वलिल इब्नतिब्नी अस्सुदुसु, और जो पोतरी है उसको 1/6 मिलेगा। अबू मूसा अशअरी ने क्या कर दिया था? पोतरी को खारिज कर डाला था। ठीक है। और उसके बाद कहा वमा बकिया फलिल उख्ती, और अगर उसके बाद कुछ बातें बचेगा तो बहन को मिलेगा। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने बहन को बाहर किया, ठीक है, और उन्होंने किसको बाहर किया? पोतरी को बाहर किया। समझ गए ना? तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि बेटी को आधा दे दिया जाएगा, उसके बाद 1/6 ये पोतरी को दे दिया जाएगा, फिर कुछ बचेगा तो वो बहन के हिस्से में जाएगा। और उसके बाद कहते हैं ये लोग फिर ये गए अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास। अब यहां से वहां, वहां से यहां जा रहे हैं, ठीक है। गए भाई, ये भी साहबी वो भी साहबी, गए फिर वापस, और उन्होंने जो कुछ अब्दुल्ला बिन मसूद ने बयान किया था वो पूरी की पूरी बात उनके सामने रख दी। कहा कि हजरत आपने तो ऐसा बोला था और सोचे बोले थे कि हमने जो फतवा दिया है वैसे ही फतवा उनके पास भी मिलेगा, लेकिन उन्होंने तो उल्टा बताया। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पूरी बातें उन्होंने नकल कर दी। मालूम है अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला ने क्या कहा? उन्होंने कहा ला तसअलूनी मा दामा हाज़ल हब्रु फीकुम, कहा कि ऐ लोगों, आज के दिन से मैं तुम्हें ये वसीयत कर रहा हूं कि जब तक इतना बड़ा आलिम तुम्हारे दरमियान मौजूद है, मुझसे कभी भी कोई मसला नहीं पूछना। इतना बड़ा आलिम तुम्हारे सामने है, मुझसे मसला नहीं पूछना।
इससे ये भी पता चलता है इल्म अहले इल्म से हासिल करना चाहिए। हर किसी से मसले पूछने मत बैठिए, बल्कि इल्म अहले इल्म से हासिल करना चाहिए। तो अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने को अब्दुल्लाह बिन मसूद ने गुमराह नहीं कहा, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मालूम है, मैं हदीस के मुताबिक फैसला करूंगा। ठीक है, मैं हदीस के मुताबिक। तो इससे ये पता चलता है कि जितने भी अइम्मा, ये बहुत बड़ा इल्जाम है कि ये लोग अहले हदीस जो है वो इमामों को नहीं मानते। मानते हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बिलमुकाबिल बिल्कुल नहीं मानते। यहां सहाबी की बात नहीं मान रहे हैं। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ गई तो नहीं मान रहे हैं उनकी बातें। कहते हैं हम तो वो फैसला करेंगे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला था, उनकी बात क्यों मानेंगे? एक और, अब देखिए एक और जो है सही बुखारी में एक वाकया और जिक्र है। ताबई की बात में कर रहे हैं। एक ताबई हैं इब्ने अबी अम्मार, ताबई हैं। ये कहते हैं कि हज का मौसम था और एक मसला मुझे पूछना था। मैं सहाबी रसूल हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया और मसला मेरा यह था, मैंने उनसे पूछा अज़्ज़बउ और सईदुन हिया, कि बिज्जू क्या उसका शिकार किया जा सकता है? तो उन्होंने कहा कि हां। कहते हैं कि अच्छा शिकार हो गया, कुल तो आकुलहा, शिकार कर लिए, खा भी सकता हूं क्या? तो उन्होंने कहा कि हां। उसके बाद सुन लिया इतनी बातें, मालूम क्या बोलते हैं? एक बात और पूछनी है। बोले क्या? अक़ालहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो बात कही है कि ये बिज्जू उसका शिकार कर सकते, उसको खा सकते, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात आपसे बयान की है? ताबई किसको बोल रहे हैं? सहाबी को बोल रहे हैं। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही है? कहा कि हां, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही है। इससे पता क्या चला? हर कसो नाकस की बातें बगैर दलील के नहीं मानी जा सकती हैं। यहां ताबई सहाबी से क्या मांग रहे हैं? दलील मांग रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा है तो हम मानेंगे। आपकी बात कहे तो माने, आपकी बात क्यों मानेंगे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो माने। आज कितने लोग हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, हाँ मानते हैं, लेकिन हमारे मसलक के खिलाफ है भाई। हमारे इमाम ने कुछ और कहा है, हम तो जिस इमाम को मानते हैं उनके यहां ये चीज नहीं है, हम तो जिस मसलक को मानते हैं उस मसलक में ये चीज नहीं है। यही जवाब मिलता है ना। बताइए ये कहां मनहजे सलफ हुआ, कहां मनहजे सहाबा हुआ? अगर कामयाबी वाकई चाहिए तो किसको अपनाना पड़ेगा? सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन की जिंदगी को देखना पड़ेगा। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चले और ताबईन उनके तरीके पर चले, और वे बेहतरीन जमाने वाले लोग हैं, बेहतरीन जमाने वाले लोग हैं। ठीक है, और हर चीज के अंदर अकीदा भी वही होना, अमल भी वही होना, हर चीज में, दावत में भी वही काम। सहाबा के जो जिंदगी है और सहाबा का जो मनहज है, उनका जो तरीक़ेकार है, उसी के ऊपर चलेंगे तो कामयाब होंगे, उसी के ऊपर। लिहाजा कोई भी इमाम है, उनकी बातें अगर हदीस और कुरान के मुआफिक हैं, काबिल अमल हैं, आमन्ना व सद्दक़ना। लेकिन अगर वो हदीस के खिलाफ हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बात मानी जाएगी, उनका हुक्म माना जाएगा, उनका तरीका अख्तियार किया जाएगा। वहां इमाम की बातें अल्लाह उसके रसूल की बातों के आगे मुकद्दम नहीं की जाएगी। ठीक है, समझ ना, उसको मुकद्दम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के हम पाबंद हैं और सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के तरीके के पर चलने के हम पाबंद हैं। अब एक मिसाल और ले लें आप कि सहाबा जो है, देखिए अकीदे की बात चल रही है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह ताला कहाँ है? अर्श के ऊपर मुस्तवी है। ठीक है, हमने कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ करके हमने ये समझ लिया। एक तीसरा शख्स मजलिस में से उठा, उसने कहा कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया ऐनमा कुंतुम हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम,
कुरान ही में अल्लाह ताला ने कहा है तुम जहां कहीं भी रहो अल्लाह तुम्हारे साथ है। हो गया ना झगड़ा। अब सवाल ये पैदा होता है, ये कह रहा है कि जहां कहीं भी रहो अल्लाह तुम्हारे साथ है, समझ गए। अब इससे तो पता चलता है कि अल्लाह हर एक के साथ में है। मैं जहां हूं वहां अल्लाह मेरे साथ है, आप जहां हैं वहां अल्लाह आपके साथ में। आप बोल रहे अल्लाह अर्श के ऊपर मुस्तवी है, होगा झगड़ा ना। अब इसमें एक शख्स आएगा बोलेगा भाई दोनों सही। एक फैसला क्या हो सकता, तुम्हारी भी सही तुम्हारी भी सही, ठीक है। दूसरा बोलता नहीं 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 नहीं, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, यही सही है। आज लोग मानते हैं ना, बहुत सारे लोग अल्लाह हर जगह मौजूद है, ठीक है, अल्लाह हर जगह मौजूद है। अब सवाल यह है कि सही बात क्या है, उसके लिए किसको देखना पड़ेगा, हमको आपको इनको उनको नहीं, सहाबा को देखना पड़ेगा। सहाबा को देखना पड़ेगा। क्या सहाबा ये मानते थे कि अल्लाह हर जगह मौजूद है? ये मानते थे सहाबा? सहाबा की जिंदगी को देखना पड़ेगा, इसलिए कि कुरान और सुन्नत को सहाबा से बेहतर किसी और ने नहीं समझा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने जो कुछ बयान किया, उन्होंने जो समझा वैसा किसी ने नहीं समझा है। अब सहाबा का क्या था? सहाबा का यह था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श के ऊपर मुस्तवी है बजाते खुद। अल्लाह जात के एतबार से वहां है, लेकिन इल्म के एतबार से अल्लाह हर जगह है। अल्लाह का इल्म हर जगह है। शेखुल इस्लाम अल्लाह इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह सहाबा का वही मनहज और वही अकीदा बयान कह रहे हैं कि देखो मैं यहां हूं, चांद हमको दिखाई दे रहा है, मैं यहां से फोन करूं अभी औरंगाबाद, वहां किसी से पूछूं भाई तुमको चांद दिख रहा है, वो भी बोलेगा चांद दिखाई दे रहा है। और किसी शहर में मैं फोन करूं, पुणे फोन करूं, वहां पूछूं किसी से भाई चांद तुमको दिखाई दे रहा है, बोलेंगे दिखाई दे रहा। हो गए कई सारे हो गए, एक ही चांद है ना, चांद एक ही है, उसकी रोशनी पूना में जो शख्स है उसको भी मिल रहा है, मैं यहां हूं कन्नड़ में, हमको भी वही रोशनी, उसी एक चांद की रोशनी मिल रही है। एक शख्स औरंगाबाद में, उसको भी उसी चांद की रोशनी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। चांद एक मखलूक है, अगर वो एक हो करके उसकी रोशनी अल्लाह जहां तक चाहे हर एक उसी एक से जो है रोशनी से मुस्तफीद हो सकता है, तो अल्लाह ने जिस सबको बनाया है, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इल्म के एतबार से हर जगह नहीं हो सकता है? जात के एतबार से अल्लाह का होना जरूरी है। हम अपना चांद लेके चले, उन्होंने अपना चांद लेकर चले, तीसरा अपना चांद लेकर के चले, ये जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। तो झगड़ा यहां होता है कि जब हम सहाबा के कौम को छोड़ देते हैं। झगड़ा हुआ तो पीछे जाओ, सहाबा ने क्या समझा था वो देखो। इसलिए कि सहाबा भी अगर वो नबी के फहम को छोड़ते थे गलत हो जाया करते थे। अब देखिए बहुत मशहूर वाकया है, बहुत मशहूर वाकया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादतें मारूफ है। एक चंद सहाबी गए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर, अम्मा आयशा से पूछ लिया अल्लाह के नबी वसल्लम की इबादतें कैसी होती, तो उन्होंने बताया अल्लाह के रसूल रोजा रखते थे, इतने इतने दिनों का रोजा रखते थे, रात में इबादतें करते थे, पैर सूज जाया करते थे, ठीक है, ये सब सारी चीजें बताई। उन तीनों ने आकर के अपने आप से एक वादा लिया। उन्होंने कहा कि देखो वो तो नबी हैं, वो नबी हैं, उनके तो सारे के सारे गुनाह माफ हो गए, हम तो गुनहगार हैं, तो हम क्यों ना करें कि पूरे साल रोजा ही रखें, पूरे साल हम रोजा रखेंगे। दूसरे ने कहा पूरी रात हम नमाज पढ़ेंगे। तीसरे ने कहा भाई देखो इबादत अगर अकेले हैं तो आप पेट पालना आसान है, लेकिन शादी ब्याह कर ले तो बीवी बच्चे हो जाएंगे तो कहीं नौकरी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब उनका पेट भरेगा, तो बहुत सारा हमारा वक्त दुनिया कमाने में चले जाएगा, इसलिए शादी ब्याह ही नहीं करेंगे। समझ गए? नीयत सही थी कि सही नहीं थी? नीयत अच्छी थी ना, नीयत बहुत अच्छी थी कि भाई पूरी रात इबादत करेंगे और हमेशा रोजा रखेंगे, ठीक है, और दुनिया में मसरूफ ना हो इसके लिए शादी ब्याह से अपने आप को दूर रखेंगे, ठीक है, खर्चे हो जाएंगे बोले हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो आपने क्या कहा, मैं सोता भी हूं और इबादत भी करता हूं,
मैं कभी रोजा रखता हूं नफली और कभी नहीं भी रखता हूं, और तुमको तो 4 की इजाजत है, हमारी कितनी है? बर वक्त 9 है, समझ मैं 9 है। और फिर आपने कहा फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीके से अलग हट करके कोई तरीका अख्तियार करेगा उसका ताल्लुक मुझसे बिल्कुल नहीं है। ये बार बार सुनते ना, तो अन्निकाह मिन सुन्नती, फिर आगे पढ़ा जाता फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ये वाक़या वो है, ये वाक़या है वो। अब सोचिए सहाबा अगर नबी से बढ़ करके कुछ करना चाहें, वो भी नबी के तरीके पर नहीं माने जा रहे हैं, तो आज के दौर में कोई बढ़ के करे तो माना जाएगा? हैं? ये तुमने जो तीजा निकाले, कुंडा निकाले, बरसी निकाले और पता नहीं क्या क्या निकाले। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाह। ये बोलता है कि अगर फातिहा पढ़ लिए तो क्या हर्ज है? भाई अगर फातिहा पढ़ लिए तो क्या हर्ज है? फातिहा तो कुरान की सूरा है ना, वो पढ़ लिए तो क्या हर्ज है? हर्ज है, इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी है। खाते वक्त आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़। हर्ज यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अमल नहीं किया है, और तू किसके ताबे है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा का हुक्म दिया गया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है तो तू क्यों कर रहा है? नबी से बढ़ करके करेगा? भाई अल्लाह के रसूल, हम नमाज पढ़ते हैं ना, पहले सूरह फातिहा पढ़ते फिर कोई सूरत पढ़ते। अब कोई कहे नहीं पहले हम सूरत पढ़ेंगे फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, हो जाएगी नमाज हमारी? नहीं होंगी, क्योंकि नबी के तरीके से अलग नमाज हो गई, हमारी अलग नमाज हो गई। यही है मनहजे सलफ, इसी को कहा जाता मनहजे सलफ, कि दीन को, अकीदे को, इबादत में, हर चीज में, अमल में हम देखेंगे सहाबा क्या ये अमल करते थे या नहीं करते थे। अगर है उनकी जिंदगी में तो आप करो, नहीं है तो क्यों कर रहे भाई? अगर वो जितने दीन पर अमल करके जन्नत में चले गए तो तुम क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं ना, बिल्कुल जा सकते। इसी को कहा जाता है मनहजे सलफ। कई सारी दलीलें, कई सारी बातें हो सकती हैं। कहने का मकसद है किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फहम पर, और उस फहम पर जो फहम अल्लाह के नजर में मतलूब है, उसी फहम में किताबुल्लाह सुन्नत रसूल को समझना, इसी में नजात है, इसी में कामयाबी है, इसी में भलाई है। बिगाड़ वहां पैदा होता है जब एक इंसान अपना फहम, अपने आबा अजदाद का फहम और अपने आप से किसी को बड़ा मुतय्यन करके उनका फहम ले लेता है। इमामों को किसने मुतय्यन किया है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी इमाम का नाम लिया है कि इनकी इत्तिबा करनी है, इनकी पैरवी करनी है, इनके मुकल्लिद बन के रहो, इनकी तकलीद करो, इनके पीछे चलो? ऐसा कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया? कुरान में अल्लाह ने सहाबा को कहा है, बेहतरीन ज़बाना ताबईन और तबा ताबईन को कहा है, फिर कहा कि जो इनके नक्शे कदम पर चले वही कामयाब होंगे। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम सहाबा के नक्शे कदम पर चलें, अकीदे में, अमल में, दावत में, शादी ब्याह में, हर अमल में, हर चीज में सहाबा की जिंदगी को देखें। सहाबा ने जैसा किया था वैसा हम कर लें, हम कामयाब हैं। अगर उनके रास्ते से हटेंगे तो क्या हो जाएगा? भटक जाएंगे। नुअल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम। अल्लाह एक आयत पढ़ के खत्म करता हूं बात। वमन युशाक़िक़िर रसूला, वमन युशाक़िक़िर रसूला, जो शख्स रसूल की मुखालिफत करे। कोई भी मुसलमान रसूल की मुखालिफत करके कामयाब हो सकता है? नहीं हो सकता। इसको तो कोई नहीं मानता है ना, हर कोई इकरार करते हैं ना इसकी। वमन युशाक़िक़िर रसूला मिन बअदि मा तबय्यना लहुल हुदा, हिदायत, कोई मसला, कोई फतवा, कोई बात वाज़ेह हो गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, बात हो गई। अब कोई मुखालिफत करता है, यानी अपोजिट बात करता है, अपनी बात पेश करता है, किसी बड़े की बात पेश करता है, किसी इमाम की बात पेश करता है, किसी आलिम की बात पेश करता है, उसके बिलमुकाबिल, तो नबी की मुखालिफत नहीं होगी? होगी। ठीक है। उसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं वमन युशाक़िक़िर रसूला मिन बअदि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनीन के रास्ते को छोड़ करके किसी और रास्ते पर चले। दो चीजें अल्लाह ताला ने जिक्र की, एक तो नबी की मुखालिफत और दूसरे मोमिनीन के रास्ते को छोड़ के कोई और रास्ते पर चले। सवाल यह है कि मोमिनीन से मुराद कौन? उस जमाने में मोमिन कौन थे? सबसे पहले हम और आप, सहाबा।
तो दो चीजें अल्लाह ने बयान की हैं, नबी की मुखालिफत भी अल्लाह को कबूल नहीं है और ना ही सहाबा के रास्ते को छोड़ के कोई और रास्ता पसंद है अल्लाह ताला। दोनों चीजें हैं, नबी की मुखालिफत भी नहीं चलेगी और सहाबा के रास्ते की मुखालिफत भी नहीं चलेगी। अगर कोई करेगा तो क्या होगा, नुवल्लिही मा तवल्ला, जिस रास्ते पर चल रहा है हमको हम उसको उसी रास्ते पर लगा देंगे, व नुस्लिही जहन्नम, और कहां पहुंचा देंगे। पता चला नबी की मुखालिफत और सहाबा के रास्तों को छोड़ करके किसी और रास्ते पर चलना कहां पहुंचाएगा, जहन्नम में। तो जन्नत में क्या पहुंचाएगा, नबी की इत्तिबा और सहाबा के रास्ते की पैरवी। हुई ना बात है कि भाई सहाबा जिस दीन पर चले उसी दीन को अख्तियार करेंगे तो जन्नत मिलेगी, समझ रहे ना। तो अगर सिर्फ नबी की बात, खाली नबी की इत्तिबा का हुक्म होता था है तो बात पूरी हो जाती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने सहाबा की बात का जिक्र किया है। क्यों जिक्र किया है, इसलिए कि हम सूरह फातिहा में क्या पढ़ते, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सिरातल मुस्तकीम की हमें तौफीक अता फरमा। ठीक है, दुआ करते हैं ना हर नमाज के अंदर, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हो गई दुआ मांग लिया सिरातल मुस्तकीम। अब सिरातल मुस्तकीम है क्या, तो आगे क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला से, सिरातल लजीना अनामता अलैहिम, ऐ अल्लाह वो सिरात मुस्तकीम हम मांग रहे हैं कि जिनके जिस सिरात मुस्तकीम पर चले जो लोग, अल्लाह तूने उनके ऊपर इनाम किया हुआ है। सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले लोगों के ऊपर तूने क्या किया है, इनाम किया हुआ है। वो रास्ता, वो सिरात मुस्तकीम चाहिए हमको, वो रास्ता होना जिस पर मुनाम अलैह, जिस पर तेरा इनाम हुआ, जो लोग चले हैं वो रास्ता होना। अल्लाह से ये रास्ता मांग लिए, फिर अल्लाह से दो रास्तों की आप हिफाजत मांगते हैं, गैरिल मग़ज़ूबे अलैहिम वलज़्ज़ालिन, अल्लाह वो रास्ता नहीं होना कि जिस पर वो लोग चले जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ, और वो लोग चले जो गुमराह हैं। गजब किस पर नाजिल हुआ, एक इंसान को मालूम है ये अल्लाह की बात है, रसूल की बात है, फिर भी नहीं मान रहा है, इल्म होते हुए अमल ना करने वाला क्या है, मग़ज़ूब अलैह है। ठीक है, हदीस मालूम, हमको नहीं करना है क्योंकि हमारे इमाम के खिलाफ है, समझ रहे, हमारे मसलक के खिलाफ है, हमारे मनहज के खिलाफ है, तो वो क्या है, मग़ज़ूब अलैह, इल्म होते भी अमल नहीं किए। और दूसरे वो लोग हैं कि जिनके पास इल्म नहीं था और कर रहे थे, बगैर इल्म के अमल करेंगे तब भी क्या हो जाएंगे, आप गुमराह हो जाएंगे। ठीक है, तो दो रास्ते से हिफाजत मांग रहे हैं। अब मुनअम अलैह कौन है, अल्लाह ताला ने कुरान में आगे बयान फरमाया, उलाइका मअल लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना। तो सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले कौन, नबी। तो हम अल्लाह से मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह नबियों वाला रास्ता चाहिए, ऐ अल्लाह सिद्दीकीन वाला रास्ता चाहिए जिस पर सहाबा चले हैं, वश्शुहदा, शुहदा में कौन कौन है, अबू बकर को छोड़ के बाकी तीनों खलीफा, उमर भी शहीद और उस्मान भी शहीद, हजरत अली भी शहीद, वस्सालिहीना, और दीगर जो सहाबा हैं, सहाबा ही का रास्ता तो हम मांग रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से सूरह फातिहा के अंदर, और यहां लोग सूरह फातिहा ही छोड़वा दे रहे हैं, है नहीं। इसको खाली इमाम पढ़ेगा, मुक्तदी नहीं पढ़ेगा। मुक्तदी को सिरात मुस्तकीम की जरूरत नहीं है, उसको भी तो जरूरत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, जो सूरह फातिहा ने पढ़े उसकी नमाज नहीं होती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा फरमा रहे हैं, ये बोलते नहीं इमाम पढ़ेगा मुक्तदी नहीं पढ़ेगा, कितनी गलत बात है। तो यही सब सोचने की चीजें हैं। तो असल क्या है, मनहज सलफ ही राह नजात है। सारे लोगों की बातें सही हो सकती हैं बशर्ते कि वो किताबुल्लाह सुन्नत रसूल के मुआफिक हों। अगर उसके मुखालिफ हैं वो बातें काबिल कबूल बिल्कुल नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि इलाल आलमीन ता जिंदगी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और मनहज सलफ पर इलाल आलमीन जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इलाल आलमीन जो कुछ जो है खामियां हैं, इलाल आलमीन और खामियों को हमें दूर करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम जिंदा रहें ईमान और तौहीद पर अल्लाह रहने की तौफीक अता फरमाए। जो हमारा खात्मा ईमान और तौहीद पर हो। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।